Hello, folks. Welcome back to our course series on Python and its libraries. In this video, I'm going to introduce you to Matplotlib, which is a widely used plotting library for Python. Now, Matplotlib can be used to create a lot of different types of visualizations, interactive visualizations, animated visualizations, etc. It provides a way to create all the possible plots that you can imagine: line plots, scatter plots, bar charts, histograms, etc. etc. The biggest advantage of Matplotlib over other tools that we've used in the past, like Tableau and Power BI, is that it is available for free. And for scientific research, if you're starting a career in data analysis, machine learning, any AI fields, it is very crucial to be able to visualize data using something which is more programmatic. So in this case, Matplotlib helps with that. And the best part is that you can use it with pandas data frames और numpy arrays. So हमने जो पहले pandas और numpy सीखा है उसको भी हम Matplotlib के साथ कंबाइन कर सकते हैं. एक और चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है pyplot. pyplot is a sub-module of the matplot library which provides functions to create a figure. So हम matplot library पूरी नहीं यूज़ करेंगे इस कोर्स में, हम सिर्फ pyplot पे फोकस करेंगे और उसे हम import करते हैं using the plot alias, using the PLT alias. Let's get started with a basic line plot. तो हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें हम दिल्ली के टेम्परेचर्स देख रहे हैं ओवर अ वीक. तो ऑलमोस्ट गर्मी के मौसम के टेम्परेचर्स हैं ये. लेट्स से कि ये मार्च के टेम्परेचर्स हैं, राइट. और हमारे पास एक पाइथन की डिक्शनरी है जिसमें डे और टेम्परेचर की वैल्यूज़ हैं. हमें इसे लाइन प्लॉट में प्लॉट करना है, तो हमने मैटप्लॉट की पाईप्लॉट लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया एज PLT. तो हम फंक्शन लिखेंगे plt.plot. That's the most basic function which automatically plots a line plot, and the parameters are first the x series, x axis पे कौन से values होंगे और फिर y axis पे. Very simple syntax. अगर आप इसके syntax के बारे में और देखना चाहें, so यहाँ पे अगर हम hover करें तो हमें इसका पूरा definition मिलेगा कि plot फंक्शन में x वैल्यूज़, y वैल्यूज़ और कई तरह के आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं. पर अभी के लिए हम सिर्फ सिंपल x और y वैल्यूज़ दे के प्लॉट करते हैं और ये हमारा लाइन प्लॉट आ गया है. और x एक्सिस पे लेबल्स हैं जो डेज़ की और y एक्सिस पे एक्चुअल वैल्यूज़ हैं. पर अब ये प्लॉट थोड़ा तो बोरिंग लग रहा है, राइट. एक सिर्फ लाइन ही है. तो लेट्स गेट टू ब्यूटिफाइंग इट अ लिटिल. लेट्स प्लॉट मिन टेम्परेचर्स एज वेल, कि मिनिमम वैल्यूज़ प्लॉट करते हैं और दो अलग तरह के मार्कर्स यूज़ करते हैं. ग्रीन सर्कल मार्कर्स फॉर मैक्स टेम्परेचर एंड ब्लू ट्राइंगल्स फॉर मिन टेम्परेचर. और हम हमारे एक्सिस पे लेबल्स डालते हैं कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है. एक चार्ट का टाइटल डालते हैं और लेजेंड बनाते हैं, यानी कि जो बताए ग्रीन सर्कल मार्कर्स हैं वो किसके लिए हैं और ब्लू ट्राइंगल्स किसके लिए हैं. एंड आई ऑल्सो शो यू हाउ टू डू ग्रिड लाइन्स. सो दिस इज़ द कोड फॉर इट. टेम्परेचर्स वाले डिक्शनरी में मैक्स टेम्परेचर के अलावा मिन टेम्परेचर भी ऐड कर दिया है और हम दो प्लॉट्स बना रहे हैं. पहले प्लॉट में हम मैक्स टेम्परेचर दिखाएंगे. इन ये जो वैल्यू है G और O की, it shows that green circles and the label of this plot is max. Similarly, we plot the min temperature with B indicator, this sign, which is blue triangles, and we call it the label min. And then we add labels and title to our plot. तो हमारे plot का title है दिल्ली के temperatures over 7 days. X axis की label है day of the week. Y axis की label है temperature, and legend will automatically print the legend for our two charts, and grid will show us the grid. So this is a much more prettier graph that we have, where it shows me the green circles for the max temperature and the blue triangles for the min temperature
We have added a label on our y-axis called temperature in degrees centigrade, day of the week, and we have added a chart title. Very simple, right? अब अगर आप सच में एक अच्छे डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आप सिर्फ प्लॉट करके नहीं छोड़ देंगे. यू विल ट्राई टू एनालाइज एज टू व्हाट पैटर्न इज दिस ट्राइंग टू शो यू. तो अगर हम मैक्स टेम्परेचर्स देखें तो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि कुछ डेज ऑफ द वीक कम था और फिर बढ़ गया. पर अगर हम मिन टेम्परेचर्स को देखें तो वो भी सॉर्ट ऑफ ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, पर एक आध अनोमली है उसमें. वेंसडे को मैक्स टेम्परेचर बढ़ा था पर मिन टेम्परेचर और गिर गया था. तो दिस इज़ हाउ अ ट्रू डेटा एनालिस्ट थिंग्स. नाउ वुडंट इट बी ईजियर अगर ये डॉट्स जॉइंड होती हमारी तो हमें एक्चुअल ट्रेंड पता चलता. अब कैसे जॉइन किया जाए, तो मुझे इसका सिंटैक्स पता नहीं है, तो मैं जेमिनाई को पूछती हूँ. यहाँ पे जेमिनाई हमारी हेल्प के लिए तैयार खड़ा है. तो मैंने उसको पूछा, हाउ डू आई गेट अ लाइन जॉइनिंग ऑल द ग्रीन सर्कल्स इन दिस कोड, और मैंने उसको मेरा कोड दिया. सो इट सेड, to get a line joining all the green circles, you need to specify both a marker, which is the circle, and a line style like with a dash in the format string. तो जेमिनाई की एक प्रॉब्लम ये है कि वो पूरा कोड हमारे लिए डाल देता है इमिजिएटली, पर मुझे ये पसंद नहीं है. मैं खुद से डालना चाहती हूँ एक कोड ताकि मुझे खुद को प्रैक्टिस हो लिखने की. तो मैं सिर्फ इसका जो रिकमेंडेशन है, बाय एडिंग अ हाइफन टू द फॉर्मेट स्ट्रिंग यू टेल इट टू यूज़ ग्रीन सर्कल्स एंड कनेक्ट देम विद अ सॉलिड लाइन. तो ये हम खुद से डालेंगे, तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ ताकि ये जो कोड ये डालने की कोशिश कर रहा था ये नहीं होगी. तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ और मैं खुद से डालूँगी. तो मैं यहाँ पे गो हाइफन और बी ट्राइंगल हाइफन. नाउ लेट्स रन इट अगेन एंड सी व्हाट हैपन्स. So nice, we now clearly see a trend line and we see that there is an anomaly on Wednesday. So this is how we are going to continue using the help of Gemini as we learn Matplotlib. चक्कर ये है कि जब मैं ये सब कोडिंग सीख रही थी तब पहले तो हम टेक्स्ट बुक से पढ़ते थे, सारा सिंटैक्स देखते थे, ढूंढना पड़ता था. फिर बाद में इंटरनेट के ज़माने में हम ऑनलाइन ढूंढने लगे, स्टैक ओवरफ्लो ये सब रिकमेंडेशंस देती थी वेबसाइट्स. अब एआई के ज़माने में हमें एआई को अपने असिस्टेंट की तरह यूज़ करना है. उससे हमारा सिंटैक्स ढूंढना बहुत फास्ट हो जाता है, हमें बहुत सारे वेब पेजेस नहीं ढूंढने पड़ते हैं. पर मेक श्योर टू यूज़ इट ओनली एज एन असिस्टेंट. डोंट लेट एआई बिकम योर मास्टर. ये आप याद रखिए कि हम एआई को सिर्फ सीखने के लिए यूज़ करेंगे. हम सीखेंगे खुद ही, तभी हम आगे बढ़कर एआई को किस तरह बेस्ट यूज़ करना है वो सीख पाएंगे. Alright, so now let's come to bar charts. So for learning how to draw bar charts, we are going to use our Superstore sales data and do a bar chart comparison of sales by product subcategory. तो मैंने यहाँ पे हमारे बार डेटा को लोड किया है अपने कोलैब नोटबुक में जाके. लेट्स लुक एट द डेटा अगेन जस्ट टू रिमाइंड आवरसेल्व्स. ये हमारा सुपर स्टोर का डेटा है. इसमें ये कॉलम्स हैं: ऑर्डर आईडी, डेट, शिप डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, नेम, स्टेट वगैरह वगैरह. यहाँ पे हम फोकस करेंगे सेल्स के अमाउंट बाय कैटेगरी और सब कैटेगरी एंड द क्वांटिटी. ये कॉलम काम में लेंगे हम लेटर अपने कोर्स में. और प्रॉफिट. तो सेल्स और प्रॉफिट से शुरू करते हैं, बाद में क्वांटिटी भी यूज़ करेंगे और इसे हम सब कैटेगरी या फिर कैटेगरी के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे. तो कमिंग बैक टू आवर मैटप्लॉटलिब, डेटा का इन्फो प्रिंट किया है हमने. तो these are the columns and these are the object types. So we have decided to make a bar chart of comparison of sales by product subcategory. इसके लिए हम एक pandas data frame लेंगे as the data to be plotted. तो अगर आपको याद हो कि हम CSV फाइल से अपने डेटा को pandas data frame में लोड करते हैं, ये हमने pandas वाले सेक्शन में सीखा था. And then we need to group the data by using the group by function using the subcategory column. अब
पर इस डेटा में जैसे हमने देखा बहुत सारे रोज़ हैं ऑफ रिपीटेड सब कैटेगरीज, राइट। जैसे यहाँ पे टेबल्स का डेटा है और इधर भी टेबल्स का डेटा है, ऐसे कई रोज़ में टेबल्स का डेटा है। तो हमें पहले ग्रुप करना पड़ेगा बाय सब कैटेगरी। सो यहाँ पे मैंने आपको सारा एक्सप्लेनेशन दिया है। लेट्स ग्रुप द डेटा बाय यूजिंग द ग्रुप बाय फंक्शन using the subcategory column. We then select the sales column from the group data and apply an aggregation function sum to it. तो जब भी आप group by function यूज़ करेंगे उसके साथ में एक aggregation function देना ज़रूरी है। जैसे हमने अगर tables का data group कर रहे हैं across these multiple rows, तो हमें एक ही रो आएगा tables का, तो उसके लिए हमें सारे सेल्स के अमाउंट्स को एड अप करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वाई वी गिव द एग्रीगेट फंक्शन। अगेन, अगर आपको इसका सिंटैक्स सीखना है तो आप यहाँ पे हावर कर सकते हैं और वो आपको पूरा सिंटैक्स बताएगा, या फिर आप अपने असिस्टेंट जेमिनी से पूछ सकते हैं। लेट्स क्विकली वॉक थ्रू द कोड। सो वी इम्पोर्टेड pandas as PD along with our matplotlib.pyplot। हमने अपने डेटा फ्रेम में CSV फाइल के डेटा को रीड किया जो superstore-data.csv है। हमने डेटा फ्रेम का ग्रुप बाय फंक्शन यूज़ करके अब सब कैटेगरी से रोज़ को ग्रुप किया और फिर सेल्स के वैल्यूज़ को सम किया। तो ये ग्रुप DF डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। इसका हम इन्फो प्रिंट करके देखते हैं पहले कि इसमें क्या वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो हमारा ग्रुप्ड DF है वो एक सीरीज़ है जिसमें सेल्स की वैल्यूज़ हैं। उसके इंडेक्सेस आर एक्चुअली द सब कैटेगरीज। हमें अगर सब कैटेगरीज के अगेंस्ट सेल्स प्लॉट करनी है तो हमारे प्लॉट डॉट बार फंक्शन में हम एक्स एक्सिस के लिए देंगे इंडेक्स हमारे सीरीज़ का और वाई एक्सिस में देंगे एक्चुअल वैल्यूज़। और हमने कलर स्पेसिफाई किया है हमारे बार चार्ट के लिए कि वी वांट अ ग्रीन बार चार्ट एंड दिस इज़ व्हाट वी गेट। नाउ डू यू सी अ प्रॉब्लम इन दिस? हमारे एक्स एक्सिस का डेटा बहुत ही गार्बल्ड है तो उसे ठीक करना पड़ेगा, पर वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम बार चार्ट, स्टैक बार चार्ट, पाई चार्ट और स्कैटर प्लॉट्स के बारे में बात करेंगे। टॉक टू यू सून।